लेसन नंबर 8, कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स। वैसे तो कंपनी अकाउंट्स में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती है, इशू ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, रिडम्पशन एंड ऑल दैट, बट at 12th level we have only issue of shares. I think you know what is company. You know that company is anything that is registered under Companies Act. कंपनी का एक्चुअल डेफिनेशन आपको उसी में मिल जाएगा या एसपी में। Capital is the most important part of company, and what are we going to deal here in accounts is the capital of company. Capital is a lifeblood of any business organization. A sole trader introduces capital out of his own pocket. Partners bring their capital. We have seen sole trader in 11th. We have seen partners in 12th. But in case of company, form of business organization, the capital is raised through the issue of shares. So that's why we should know what is share and we should know what is share capital. कंपनी ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और ये ज्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कैपिटल बिल्ड कर सकता है। पहली बात, कंपनी कैन बिल्ड ह्यूज कैपिटल बिकॉज इट ओवरकम्स द प्रॉब्लम्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर एक ही इंसान है, वो ज्यादा एक इंसान की क्रेडिबिलिटी कितनी होगी, कितना कैपिटल वो लेके आ सकता है। And because of less capital, he has some issues of taking risk or investing in bigger things. Expansion problem हो जाती है। Partnership में, even though to some extent this problem is solved, still limitation of capital or limitation of credibility is there. Company form of organization मध्ये फरक पडतो. Company is a very specifically formed organization. It is registered, it's an artificial person और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके शेयर होल्डर से, इसके प्रमोटर से। You might have studied in OC मध्ये, SP मध्ये companies as a form of organization is there. The most important feature of company is it is an artificial legal person. It has its own sign. It's an artificial person and it is not affected. It has a perpetual existence. Perpetual existence means by death, insolvency, insanity of any one shareholder does not affect the existence of the company. और क्योंकि एक artificial legal person है, it has a huge capacity of raising huge capital. तो इसका कैपिटल थोड़ा अलग तरीके का होता है जो शेयर्स में होता है। Now we'll discuss about the share and the share capital. As per section 2, subsection 84 of Companies Act 2013, share is share in the capital of a company and includes stock as well. Share capital means capital raised by a company by issue of shares. In case a company is divided into small parts known as share, it is also known as share capital. इन शॉर्ट हम लोगों ने देखा है कि अगर प्रोप्राइटरी कंसर्न है तो प्रोप्राइटर में ब्रिंग हिज कैपिटल इन कैश और इन फॉर्म। सपोज कैपिटल है 5 लाख प्रोप्राइटर का। अच्छा, अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनर अपने अपने कैपिटल लेके आएंगे। सपोज यही पार्टनरशिप का कैपिटल है तो पार्टनर है ए और बी, ये शायद 3 लाख लेके आए, ये शायद 2 लाख लेके आए, ये हो सकता है। अगर यही कंपनी है तो कंपनी क्या करती है, ये पूरा जो 5 लाख का कैपिटल है उसे वो कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो सपोज इट हैज डिवाइडेड इनटू 5000 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज ऑफ ₹100। तो क्या होगा, 5000 पार्ट्स है और हर पार्ट 100 रुपए का है। See, for one sole trader, it is very difficult to bring 5 lakh as a capital. Not always very difficult, but it may be. क्योंकि एक इंसान कितना कैपिटल रेज कर सकता है?
पार्टनर्स भी कितना ज्यादा कैपिटल रेज कर सकता है, लेकिन कंपनी में वही 5 लाख का कैपिटल रेज करने के लिए उन्होंने क्या किया है, एक इंसान से 5 लाख नहीं ले रहे वो लोग, वो 5000 लोगों से 100 रुपए ले रहे। तो ये सारे उनके शेयर होल्डर्स हो जाते हैं। और ये जो पार्ट है, ये ईच पार्ट, वन पार्ट इज कॉल्ड एज शेयर। What is the cost of one part? 100 rupees. Like this, you have 5000 parts. Okay, this is what share is in short. और इससे जो कैपिटल बनेगा, that is called as share capital. Very simple. अभी मैंने एग्जांपल लेते वक्त 5000 का, 5 लाख रुपए का कैपिटल का लिया है, लेकिन कंपनी की, क्योंकि इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, एक सेपरेट आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है, इसके वजह से आप as a company you can raise capital up to 5 crores also. Huge capital requirement, so you should convert it into company, and we can raise. And you can take an example. Currently Nykaa का share issue हुआ है ना, November 2021 Nykaa का IPO वाला। नायका कंपनी जो लेगिंग्स और कॉस्मेटिक्स बनाती थी, पहले उन्होंने शुरुआत लेगिंग्स से की थी, फिर वुमेन्स गारमेंट में गई वो, और फिर अभी कॉस्मेटिक में गई है। उनका कॉस्मेटिक भी साइमल्टेनियसली चल रहा था। तो वो जो नायका की ओनर है, शी हैज बिकम अ फर्स्ट वुमन बिलियनियर ऑफ एशिया आफ्टर द आईपीओ इज लॉन्च्ड। जब बहुत ज्यादा कैपिटल की, जब बहुत बड़ा एक्सपेंशन करना है, बहुत कैपिटल की जरूरत है, तो आप कंपनी फॉर्म करके कैपिटल इशू करो, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि एक इंसान 5 करोड़ रेज कर सकता है, शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन एक कंपनी 5 करोड़ का कैपिटल डेफिनेटली रेज कर सकती है। फाइन। सो एज पर कंपनीज एक्ट दे हैव डिफाइंड शेयर, and in very simple language I have defined you what is share. Share is nothing but when the capital of the company is divided into some equal parts, each part is called as share. Okay, now what are the types of shares? This also you might have done in your SP. Equity share and preference shares are two types of shares. Equity share is a share which is not a preference share. It means that if the shareholder is not entitled to a fixed dividend or they have a priority for repayment, they are called as equity shareholder. Equity shares जो लोग held करते हैं उनको equity shareholder कहा जाता है. These are the real owners of the company. Profit हुआ, sufficient profit हुआ तो ही इनको dividend मिलेगा, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा profit हुआ तो excess dividend पे सिर्फ इन्हीं का हक होगा. जब कंपनी बंद हो जाएगी तो सबको पहले पेमेंट की जाएगी, इक्विटी शेयर होल्डर को लास्ट पेमेंट की जाती है। लेकिन फिर इक्विटी शेयर होल्डर का बेनिफिट क्या है? दे कैन रन द कंपनी, दे विल फॉर्म अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे विल हैव अ मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड दीज आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, दीज आर द रिस्क बेयरर्स। तो एक्सेस प्रॉफिट भी इन्हीं को मिलता है। Equity shareholder participate in profits of company after all preferential rights have been satisfied. Equity shareholder are risk bearer and therefore real owners of the company and can get dividend after payment of all expenses and dividend to preferential. तो equity shareholder को हर साल dividend मिले कोई compulsory नहीं है, लॉस हुआ तो नहीं मिलेगा। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद कोई पैसा नहीं बचा तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो एक्सेस डिविडेंड मिल सकता है उनको। ये लोग हैं जो कंपनी को चलाएंगे, ये लोग हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमेटी फॉर्म करेंगे, इनका डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट, हर चीज में इंपॉर्टेंट है। दैट द अदर पार्ट ऑफ शेयर्स आर प्रेफरेंस शेयर्स। ये वो लोग हैं जो शेयर होल्डर तो है लेकिन इनको प्रेफरेंशियल राइट्स है। प्रेफरेंस शेयर आर दोज हु हैव rights with respect to payment of dividend and repayment of capital at the winding up of the company. Thus, preference shareholder enjoy preferential right in case of payment of dividend. तो सारे expenses पे करने के बाद profit में से पहले preference shareholder का dividend जाएगा, फिर अगर पैसे बचे, profit बचा तो ही equity shareholder को जाएगा। ओके, लेकिन preference shareholder को एक fixed rate of dividend होता है, इक्विटी शेयर होल्डर की तरह कोई भी डिविडेंड नहीं मिलता उनको उनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। लेकिन अगर ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो उन्हें ज्यादा डिविडेंड नहीं मिलेगा।
अगर कंपनी बंद हो रही है तो इक्विटी शेयर होल्डर के पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका कैपिटल वापस मिलता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव प्रेफरेंशियल राइट over the equity shareholder. They get fixed rate of dividend. They get their capital back if the company is getting winded up before equity shareholder. They don't take a high risk as equity shareholders. Equity shareholder take high risk, but if the company makes abnormal profits, then equity shareholder is entitled to get that profit, not preference shareholder. There are different types of preference shareholder, cumulative, non-cumulative. Cumulative का मतलब है अगर पिछले साल इतना प्रॉफिट नहीं हुआ, उसका डिविडेंड बाकी रह गया, तो इस साल वो डिविडेंड मिलेगा। नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा कोई नहीं है, पिछले साल नहीं मिला, ये साल सिर्फ यही साल का मिलेगा। रिडीमेबल, इररिडीमेबल। रिडीमेबल मींस आफ्टर सम इयर्स द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर गिवन देयर कैपिटल बैक। इररिडीमेबल मींस दे आर नेवर गिवन देयर कैपिटल बैक। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आजकल सारे रिडीमेबल ही होते हैं, अभी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नहीं इश्यू होते। Since 2013 it is compulsory. Company Act was amended highly, actually reformed. Amendment तो हर साल होता है। Companies Act ये इंडिया में लिखा गया कॉर्पोरेट एक्ट में से सबसे बड़ा एक्ट है। It's the biggest ever corporate act written in India. Companies Act. It is since 1956. Since 1956, it is continuously amended. Almost हर साल amendment होते उसमें, लेकिन 2013 में उसको रिफॉर्म किया गया as per the new। अभी देखो बिजनेस बढ़ गए हैं, अलग हो गए हैं, as बिजनेस सेम नहीं है जैसे 1956 में था। तो कंपनीज का फॉर्मेशन भी थोड़ा बहुत बदल गया है, उसका वर्किंग भी बदल गया है। तो वो सारी चीजों को इंक्लूड करने के लिए 2013 में ये एक्ट पूरी तरह से रिफॉर्म होके नया एक्ट आया। अभी आप कंपनीज एक्ट 2013 को स्टडी करते हैं और उसमें उन्होंने बोला है कि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू नहीं होंगे। तो अगर कोई भी शेयर प्रेफरेंस शेयर के नाम से इश्यू होते हैं तो मिनिमम 10 साल के अंदर या 20 साल के अंदर, 20 साल का कुछ टाइम दिया उन्होंने, मैक्सिमम 20 साल में उसको रिडीम कर देना है। ओके, इसका भी एक अलग कंपनीज अकाउंटिंग में एक अलग होता है इसका एंट्री, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये आपको ग्रेजुएशन लेवल में आएगा। देन वी हैव पार्टिसिपेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। वी हैव कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिव मतलब वो प्रेफरेंस शेयर ही है, लेकिन अगर वो पार्टिसिपेटिव लिया है उन्होंने तो दे कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन डे टू डे बिजनेस। Otherwise, preference shareholder do not have any right to participate in day-to-day business. Non-participative is the preference shareholders which are not allowed to participate in the day-to-day business. Okay, then is convertible and non-convertible. Convertible is which can be converted to equity shareholder. Non-convertible is which cannot be converted into equity shareholder. ये सब आपको SP में, अगर आप में से SP है किसी का, तो आपको SP में ये सब बहुत डिटेल में दिया हुआ है, along with the required case law या citations या sections from the Companies Act. अभी हम लोग 2013 का ही Companies Act स्टडी करते हैं तो उनके साथ वो दिया हुआ है। बेसिक तो 1956 का ही एक्ट था, लेकिन 2013 में उसको रिफॉर्म किया गया क्योंकि बिजनेसेस बदल गए हैं, तो कंपनीज में भी काफी चेंजेस है। तो वो सब चीजें जैसे नेट बैंकिंग के रिलेटेड कुछ इश्यूज है तो वो उसमें कवर किए। बहुत बढ़िया एक्ट है 2013 का, बहुत बड़ा है। आपको आगे जाके जहां पे भी लॉ आता है या कोई CA करेगा तो वहां पे कंपनीज एक्ट में आपको ये सब स्टडी करना। So this was theory regarding equity shares and preference shares. Now next is types of share capital. Different types of share capital are as follows. Authorized capital. It is the amount of share capital which a company is authorized to issue by its memorandum of association. The amount of authorized capital is determined after taking into consideration the future requirement of capital of company
This capital is also known as nominal capital or registered capital. This is the maximum amount which a company is authorized to raise by issue of shares. Authorized capital can be increased or decreased by adopting prescribed legal procedure. तो जिस कैपिटल के साथ आपकी कंपनी रजिस्टर होती है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो मेंशन किया जाता है, दैट इज अथॉराइज्ड कैपिटल. ओके, ये डिसाइड करते वक्त कंपनी का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में क्या क्या लगेगा, उस हिसाब से कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा, ये सब करके फिर ये अथॉराइज्ड कैपिटल डिसाइड किया जाता है. क्या अथॉराइज्ड कैपिटल चेंज कर सकते हैं? हाँ, एक प्रोसीजर होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉजेस चेंज करने का. उस हिसाब से उस प्रोसीजर से अगर जाएंगे, काफी लीगल प्रोसीजर है, बड़ा प्रोसीजर होता है. कंपनी सेक्रेटरी का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है. CS, company secretary, they play a big role in this forming, deciding authorized capital, writing memorandum of association. If the memorandum of association is to be changed, authorized capital is to be changed, then they play a big role here. Okay, तो वो प्रोसीजर फॉलो करके आप अपना अथॉराइज्ड कैपिटल बदल सकते हैं. लेकिन ये वो कैपिटल है जिसके साथ कंपनी रजिस्टर होती है और जितना मैक्सिमम कैपिटल वो लोग रेज कर सकते हैं. ओके, तो अथॉराइज्ड कैपिटल अगर बिना चेंज किए आप उससे ज्यादा कैपिटल रेज नहीं कर सकते. फाइन. देन कम्स इज इशूड कैपिटल. इट इज दैट पार्ट ऑफ अथॉराइज्ड कैपिटल व्हिच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन. If the company issues all its shares, issued capital will be equal to authorized capital. Generally, company issues such number of shares which are sufficient to meet the requirement of the company at the time of their issue. The part of authorized capital which is not issued to public is known as unissued capital. Subscribed capital. Subscribed capital is that part of issued capital which is actually subscribed by the public. When the shares issued for subscription are wholly subscribed, issued capital would be the same as subscribed capital. The part of issued capital which is not subscribed is called as unsubscribed capital. Called up. It is that part of subscribed capital which is actually called up from the shareholders. The company demands only that portion which is required and which is sufficient for time being. And the part which is not called is called as uncalled capital. Then is paid up capital. It is that part of called up capital which is actually being paid by the shareholders. And the part which is not paid, it is called as consignorials. Reserve capital. It is that portion of subscribed capital which has been called up and which the company by special resolution has decided not to call up except in the event and for purpose of winding up. तो ये वो कैपिटल है, रिजर्व कैपिटल, जो आपने सब्सक्राइब कैपिटल जो है उसमें से कुछ पार्ट आप कॉल ही नहीं करोगे. आपने बोला ये हम लोग तभी कॉल करेंगे जब हम लोग वाइंड अप करने वाले होंगे. तो ऐसा कैपिटल जो कभी नहीं कॉल होने वाला है, वो सब वाइंडिंग अप के लिए रखा है, उसको रिजर्व कैपिटल कहते हैं. Okay, reserve capital is the capital which is not called and it is by special resolution not to be called. Now, to explain all these concept of authorized, subscribed and all, let us take an example and let us explain it, those concepts. Suppose a company is registered with 1 lakh shares of ₹10 each. तो एक्चुअली ऑथोराइज कैपिटल कितना हो गया? 1 लाख इंटू 10 lakh shares. This is 10 lakh is the share capital. This is my authorized capital. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उन्होंने कैपिटल के क्लॉज में 1 लाख शेयर, 10 रुपए का एक शेयर ऐसे करके इश्यू लिखा है. तो इसके साथ वो कंपनी रजिस्टर हुई है, ऑथोराइज कैपिटल में ये लिखा है, तो ये आपका ऑथोराइज कैपिटल हो गया. लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है कि अभी जब मैं पहली बार मेरे शेयर्स मार्केट में निकालूं तो मैं पूरे 1 लाख शेयर्स को बेचने के लिए निकालूं. आई मे नॉट.
I may issue only 40,000 shares. तो मैंने अभी क्या किया है, मैंने इशू किए 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ये टोटल हो गया 4 लाख। तो ये क्या हो गया है, 4 लाख इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज विच इज इशूड। सो ये क्या हो गया, इशूड कैपिटल। अब मैंने बेचने के लिए 40,000 शेयर्स निकाले, तो जरूरी तो नहीं है कि लोग 40,000 शेयर्स ही लेंगे। I am trying to sell 40,000. People may ask for 30,000 only. So suppose people have only asked for 30,000. तो 3 लाख क्या हो गया मेरा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो issued capital is a part of authorized capital. Authorized subscribed capital is a part of issued capital. अब ये 40,000 शेयर्स मैंने इश्यू किए हैं, तो 40,000 shares of ₹10, 4 lakh is my issued capital. So what is my unissued capital? Unissued capital is 60,000 shares of ₹10 each, that is 6 lakhs. Okay. अब 40,000 shares में लोगों ने 30,000 shares को ही सब्सक्राइब किया, तो ये रिमेनिंग 10,000 shares क्या हो गए, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। लोगों ने नहीं खरीदा। 10,000 शेयर्स, 10 rupees, 1 लाख। गेटिंग? नाउ दिस इज सब्सक्राइब्ड। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि 10 रुपए का एक शेयर है, कोई जरूरी तो नहीं कि 10 के 10 रुपए आप ही मांग लूं। हो सकता है कि मैं बस 5 रुपए ही मांग लूं, या मैं सिर्फ 4 रुपए ही मांग लूं। तो सपोज मैंने 30,000 शेयर्स पे 6 rupees ही मांग लिए, तो ये क्या हो गया, 1,80,000। ये हो गया क्या, कॉल्ड अप कैपिटल। मैंने 10 के 10 रुपए मांगे ही नहीं है, तो ये रिमेनिंग क्या हो गए, 30,000 शेयर पे 4 रुपए जो मैंने अभी तक मांगे नहीं है, ये क्या हो गए, दिस इज अनकॉल्ड कैपिटल। ओके, मैंने अभी तक 6 रुपए ही मांगे क्योंकि मुझे शायद उतनी की जरूरत है। तो ये 1,80,000 इज अ कॉल्ड अप कैपिटल, 1,20,000 विल बिकम अनकॉल्ड कैपिटल। इसी से थोड़ा सा पार्ट अगर उन्होंने बाजू में रख दिया तो वो रिजर्व कैपिटल हो जाता है। अगर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया और बोला कि भाई 1 रुपया कभी नहीं मांगेंगे हम लोग शेयर्स पे, तो वो 30,000 शेयर का 1 रुपया जो है वो रिजर्व कैपिटल हो जाता है। उन्होंने अगर एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया और बोला कि इस रिजोल्यूशन के हिसाब से इन 30,000 शेयर्स पे 1 रुपया हम लोग कभी नहीं मांगेंगे, ओनली इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप, so that 30,000 rupees will become reserve capital. Okay, now अब मैंने तो मांग लिए 6 रुपए, लोगों ने देने भी तो चाहिए। सपोज सिर्फ 25,000 शेयर्स ने 6 रुपए दे दिए, 5,000 शेयर होल्डर ने दिए ही नहीं है, 1,50,000। ये क्या हो गया, पेड अप कैपिटल। और ये जो 5,000 लोग हैं जिन्होंने दिए ही नहीं है 30,000, ये क्या हो गए, calls in arrears. The calls, I mean paid up capital, called up में से जितना पार्ट पेड नहीं हुआ है वो arrears में है। Are we getting this? तो उन्होंने बस, हम लोगों ने कॉल किया 6 रुपए 30,000 शेयर्स पे, सिर्फ 25,000 शेयर होल्डर ने 6 रुपए दिए हैं, 5,000 शेयर्स पे 6 रुपए नहीं मिले हैं, तो 30,000 rupees is this, 30,000 is calls in arrear, this is paid up capital. Okay, this is how we will understand what the capital structure is. This is called as capital structure.
या फिर टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप एंड रिजर्व कैपिटल। अब इसे बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाता है? ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, ये सब लिखे जाते हैं, लेकिन उनके नीचे एक लाइन आती है which means that you should not take it for calculation, या इनर कॉलम में रख दिया जाता है। फाइनली बाहर सिर्फ उतना ही आता है जितना पेड अप कैपिटल है। तो हमारे इस एग्जांपल में बैलेंस शीट में कितना आएगा? 1,80,000 minus call scenario 30,000, 1,50,000 is the paid up capital. Getting this? See here also. So here it is also given that see, they have called up 3,60,000, 15,000 was arrear. So this is the paid up capital. This is the capital of the company just now. बाकी तो authorize, issued, subscribed, called up सब इनर में या फिर उसके नीचे लाइन होगा जो ऐड नहीं होगा, सिर्फ इसको कैलकुलेशन में लिया जाएगा। तो हमारे भी एग्जाम्पल में अगर मैंने इसका बैलेंस शीट में इसको दिखाया तो ये 10 लाख, 4 लाख, 3 लाख, ये कुछ नहीं होगा। यहाँ से वो दिखा, ये सिर्फ आप लिखोगे और लाइन डालोगे, ये कैलकुलेशन में नहीं इंक्लूडेड है। 1,80,000 पे कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल सिनेरियोस, पेड अप कैपिटल इज 1,50,000. Draw a balance sheet and show this example in the balance sheet now. Now types and method of issue of share capital. अभी तक हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं और इसके बाद भी अभी तक हम लोगों ने अकाउंटिंग स्टार्ट नहीं किया है उसमें। यहाँ ये सब थियोरी हमको बहुत जरूरी है क्योंकि अकाउंटिंग स्टार्ट करने के लिए ये सब समझना बहुत जरूरी है। तो राइट इश्यू का मतलब क्या है? सेक्शन 62, राइट इश्यू इज द शेयर्स व्हिच आर इशूड ओनली फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। मतलब अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑलरेडी है कंपनी के और कंपनी अभी नया शेयर्स इशू कर रही है मार्केट में, तो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को पहला राइट देती है कि दे हैव अ फर्स्ट राइट टू सब्सक्राइब फॉर दिस शेयर्स। So the meaning of the right equity shares or right issue, एक तो ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों कंपनीज कर सकती है। मीनिंग है राइट शेयर्स आर इश्यूड बाय द कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर यूजुअली एट डिस्काउंटेड प्राइस। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर गिवन प्रायोरिटी और राइट ऑफ परचेसिंग दोज शेयर्स। इसकी जो एंट्री होती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये सेम होती है जैसे कोई भी और अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स की होती है और जो हम लोग सीखेंगे आगे जाके। Then the next is employee stock option plan scheme, ESOS। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका इनकम टैक्स में भी बहुत ज्यादा जिक्र आता है, उसको अलग से ट्रीटमेंट है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम कैन बी गिवन बाय प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। These shares are allotted to the employees at the rate less than the market price. The scheme encourages the employees to acquire ownership in the form of shares. Shareholder owner होते हैं। अगर एम्प्लॉय को भी आपने ओनरशिप में कन्वर्ट कर लिया तो एम्प्लॉय खुद की कंपनी समझ के काम करेगा, क्योंकि प्रॉफिट का हिस्सा उसको भी तो मिलेगा। जनरली एम्प्लॉय का एटीट्यूड क्या होता है? प्रॉफिट तो हम लोग मेहनत करते हैं, प्रॉफिट तो ओनर को मिल जाता है। लेकिन अगर एम्प्लॉय भी एक ओनर होगा तो उसको भी प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करता है। इसकी जो एंट्रीज होती है, अकाउंटिंग वैल्यू इज बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन एम्प्लॉयज, compensation expenses account, deferred employees compensation expenses are the new accounts to be open। इसकी जो अकाउंटिंग एंट्री है ये सब आपको अभी 12th स्टैंडर्ड में नहीं है, तो we are not going to go in detail of that। Then private placement, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी दोनों ये कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है? एनी ऑफर और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब और इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज टू एनी सिलेक्टेड पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। तो मेरी कंपनी इश्यू कर रही है मुझे, और अगर मैंने तय किया कि मेरे 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को मैं डायरेक्ट प्लेसमेंट दे दूं, मैं उनको बोलूंगी आप मुझे पैसे दो, इतने इतने शेयर्स रख लो आप, तो ये डायरेक्ट प्लेसमेंट होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट होता है।
These transactions avoid the time-consuming process of having securities registered for sale to the general public through SEBI. अगर मेरे पास ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है और उससे मेरा रिक्वायर्ड कैपिटल रेज हो जाएगा, तो मैं प्राइवेट प्लेसमेंट करके मेरा कैपिटल रेज कर सकती हूँ। पब्लिक ऑफर, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट मेक अ पब्लिक ऑफर, इसलिए तो वो प्राइवेट है। पब्लिक कंपनी कैन मेक अ पब्लिक ऑफर. Public offer is the offering of securities which are listed on the stock exchange to general public. Generally, company issue its shares on IPO. IPO is initial public offer. The capital collected recorded as stockholder equity in the balance sheet. Public offer private limited company कभी नहीं कर सकती है और इसी का हम लोग accounting treatment सीखने वाले. Sweat equity share. दोनों प्राइवेट पब्लिक दोनों इसको इश्यू कर सकते हैं एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 88 ऑफ कंपनीज एक्ट. स्वीट इक्विटी शेयर मींस सच as issued by a company to its directors or employees at a discount or for consideration other than cash for providing their know-how or making available rights in nature, intellectual property rights or value addition by whatever name called. तो ये डायरेक्टर्स को या उन एम्प्लॉइज को इश्यू किया जाता है जिन्होंने अपना खुद का एक टेक्निकल नो हाउ है या कोई स्पेशल सर्विस है जो कंपनी के लिए रेंडर किया है, एंड इंस्टेड ऑफ पेइंग देम इन कैश वी आर गिविंग देम शेयर्स. इसको कहा जाता है स्वीट इक्विटी शेयर्स. If the consideration is not by way of cash, which does not make that form of an asset that can be carried to the balance sheet of the company as per the accounting standards. ये भी आपको 12th में नहीं है, आपको 12th में बस IPO का इनिशियल ऑफर कैसे रिकॉर्ड होता है वही है. बोनस इशू ये भी हमको नहीं है, बस ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की गई है. हमको बस पब्लिक इशू जो है IPO, ये जो D है पब्लिक ऑफर, यही हम लोग करने वाले. ये सब आगे जाके आपको ग्रेजुएशन लेवल में आएगा. ये कोई CA वगैरह करेगा तो उसको वहां पे आएगा, अभी नहीं है. बोनस इशू दोनों पब्लिक प्राइवेट कंपनी कर सकती है. बोनस शेयर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अ कंपनी टू इट्स करंट शेयर होल्डर एज फुल्ली पेड शेयर्स फ्री ऑफ चार्ज. So instead of paying bonus in cash, company will issue shares to the shareholders. A bonus issue is just recomposition of reserves. It decreases the reserves on one hand and causes increase in the share capital. So it is just the amount are transferred from redemption reserve, capital reserve, security premium to equity share capital. Accumulated profits को बस शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है और कुछ भी नहीं है. इसका एक सेपरेट अकाउंटिंग होता है जो आपको SY TY ग्रेजुएशन लेवल में या CA इंटर्स लेवल में आएगा. अभी इसका कुछ भी नहीं है. तो 12th में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? 12th में हम लोग एज पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स इज इंक्लूडेड इन 12th सिलेबस ओनली, दैट मेथड इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल. मतलब डी जो है यहाँ पे सिर्फ यही हम लोग इधर बी जो है थर्ड का बी सिर्फ वही हम लोग स्टडी करेंगे और हमको कोई अकाउंटिंग यहाँ पे स्टडी नहीं करना है क्योंकि सारे चीजों के अलग अलग एंट्रीज होते हैं, अलग अलग कंसेप्ट होते हैं. दैट विल स्टडी दैट. Now we'll see what exactly is the procedure to issue shares, and in short we'll go with that and then we'll go with the accounting entries. Public issue of share. It is most common and popular practice of public limited company to raise capital by issuing shares to public in primary market. Following is the procedure. पहले तो आप prospectus issue करते, issue of prospectus. Company issue a prospectus which provides complete information of company to the prospective investors. Prospectus specify the number of shares offered to the public, face value and the amount to be paid on application, allotment and calls. Prospectus में promoters कौन है कंपनी के, जिन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, कंपनी क्या है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, सब दिया जाता है. Okay, which will help the investor to know everything about the company and then they can take their own decision. Prospectus issue करने के साथ साथ और एक काम किया जाता है, एक बैंक डिसाइड की जाती है और जनरली उसी बैंक से ये प्रोस्पेक्टस भी इशू होता है. तो बैंक इज डिसाइडेड एंड बैंक में एक अकाउंट ओपन किया जाएगा ओनली फॉर कलेक्शन ऑफ द मनी फॉर शेयर्स.
प्रोस्पेक्टस में एक फॉर्म दिया जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म, और उसी में लिखा जाएगा कि एप्लीकेशन के साथ कितनी फीस भरनी है आपको, जिसे हम लोग एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। तो लोग जिनको ये एप्लीकेशन प्रोस्पेक्टस है, जिनको इन्वेस्ट करना है, वो लोग फॉर्म पूरा भर के बैंक के पास सबमिट करके बैंक अकाउंट में पैसे भर देते हैं, कंपनी के अकाउंट में, लेकिन बैंक अकाउंट में। कंपनी के पास कोई पैसा कैश में जमा नहीं हो सकता। ओके, अगर कोई भी कंपनी का डायरेक्टर या प्रमोटर कोई भी शेयर्स अलॉटमेंट के लिए कैश रिसीव करता है तो उसे इलीगल माना जाता है। कंपनी के रूल्स है कि आप बैंक में अकाउंट खोलो, जो एप्लीकेंट्स है उनको बोलो उधर पैसा भरे, और एप्लीकेशन बैंक में जमा हो जाते हैं, एप्लीकेशन कंपनी के पास आते हैं। कंपनी जो होती है वो सारे एप्लीकेशन को स्कैन करेगी, वो देखेगी कि क्या क्या है, सारी इंफॉर्मेशन है कि नहीं, इनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, और उस हिसाब से वो लोग अलॉटमेंट करेंगे। अगर उन्होंने तय किया कि भाई इस बंदे को शेयर अलॉट करना है, तो दे विल सेंड इन द अलॉटमेंट लेटर अलोंग विद द अलॉटमेंट मनी रिक्वायर्ड। अगर उन्होंने तय किया कि नहीं अलॉट करना है, दे विल सेंड द लेटर ऑफ रिजेक्शन अलोंग विद द एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी अपने पास रख के सिर्फ रिजेक्ट करना ये अलाउड नहीं है। तो एप्लीकेशन रिसीव करना पड़ता है। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। तो जितना अलॉट किया है सेबी के हिसाब से मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए सेबी रूल्स के हिसाब से। The intending subscriber to the shares receipt of application are required to send their application form together with the application money by the specific date. The company makes its application form available to public through the broker and banks. As per section 39(2) of Companies Act, the amount payable on application on every security share shall not be less than 5% of the nominal. तो अगर 10 रुपए का एक शेयर है तो 5% से कम नहीं होना चाहिए एप्लीकेशन मनी। ओके, और सेबी का भी कुछ रूल होता है इसी रिलेटेड। सेबी का और एक रूल होता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। ओके, तो आपने अगर इशू किया है शेयर्स मार्केट में तो 90% मिनिमम सब्सक्राइब होने चाहिए, अगर नहीं हुए तो वो कैंसिल किए जाते हैं। अब अगर एक बार आपको पैसे मिल गए, आपने जिनको अलॉट करना है उनको अलॉट कर दिया, उनको अलॉटमेंट लेटर भेजा, उनको बोला आगे क्या अलॉटमेंट के शेयर्स अमाउंट भी भेज दो, जिनको रिजेक्ट किया उनको रिजेक्शन का लेटर भेज दिया अमाउंट अलोंग विद द चेक ऑफ द एप्लीकेशन मनी। अब आपके शेयर्स अलॉट हो चुके हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि आपने सारे के सारे पैसे अभी मांग लेने, आप धीरे धीरे करके भी मांग सकते हो, और आप ये जो धीरे धीरे करके मांगते हो उसे कॉल कहा जाता है। तो आपको पैसे कैसे मिलते हैं? एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे और कॉल्स पे। ओके, दिस इज हाउ द इशू ऑफ शेयर्स इज डेल्ट विद। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये मैंने एक एक्स्ट्रा बात बताई है जो यहाँ पे हम लोग डील नहीं करते 12th स्टैंडर्ड में, लेकिन आपने शायद इसको एसपी में पढ़ा होगा। जिनका भी एसपी है वो लोग उसमें पढ़ेंगे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है। अगर वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, एक्चुअली कंपनीज एक्ट में कुछ और परसेंटेज दिया है, लेकिन सेबी बोलता है कि 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, नहीं तो इशू कैंसल हो जाएगा। अगर कंपनी ने कोई भी रूल फॉलो नहीं किया या कोई एक भी रूल उन्होंने अवकाश कर दिया, तो सेबी हैज अ राइट, सेंट्रल बोर्ड सेबी इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये इसको फुल राइट है कि कंपनी पे पूरा कंट्रोल रखे। अगर ये कंपनी पूरा कंट्रोल मतलब उसके अकाउंट्स पे कंट्रोल नहीं, लेकिन उनका जो इशू ऑफ शेयर्स है उस पे बहुत नजदीक से वो ध्यान रखते हैं, और कोई एक भी रूल, छोटा भी रूल अगर कंपनी ने फॉलो नहीं किया तो पूरा का पूरा इशू कैंसिल हो सकता है। SEBI is a very important organization as far as issue of shares and entire capital market is concerned, especially stock market is concerned. और सेबी का फॉर्मेशन ही इसलिए हुआ है ताकि मिनिमम हो ही ना, फ्रॉड तो हो ही ना, और अगर हो तो भी मिनिमम कर दिए जाए इसको। अब बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज आपको यहाँ पे दी गई है, and that is there in your textbook, and you should only go as per your government textbook best
सारी इंफॉर्मेशन दी है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दी है, रेलेवेंट एंट्रीज दी है। तो आप ये एंट्री जो है वो आपके 12th के टेक्स्ट बुक से ले सकते हो। The entries are about receipt of application money, transfer of application money, share allotment, allotment money received, first call, final call, and धीरे धीरे हम लोग जैसे इसमें इंक्लूड करेंगे कि अगर किसी ने पैसे भरे ही नहीं हैं तो उसका forfeiture, reissue, pro rata, everything will be done. From to you will write down all entries from your textbook, and in the next video I will start with the sums, actual sums.